Okay. बैलेंसिंग So, वाला तो हो गया। we had studied that the next factor that makes the constitution successful is balanced institutional design. The different institutions in a constitution, if they are given a balance and the power is fragmented in them intelligently, so that no single institution can monopolize or subvert the constitution, then it is successful and it becomes popular with the people. Now, now we are going to study how was the Indian Constitution made. How was the Indian Constitution made? कैसे बनाया गया? Already we have seen it in the form of a video prepared by the Rajya Sabha TV Samvidhan series. So we have seen in a video form, in the a drama form, like the real picturization of the Constituent Assembly and the debates going on, how the constitution was made. Now here we will study in text form how the Indian constitution was made. कैसे बना संविधान? आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी और उसकी चली जो है कार्रवाई चली सारी, और उसमें जो है बहस वगैरह करके तय किया गया और बनाया गया. वहाँ हम इस चीज़ को देखेंगे. सो लेट अस फाइंड आउट हाउ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड. How the Indian Constitution was made. Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly. Formally, the Constitution was made by the Constituent Assembly, which had been elected for undivided India. ये आप देख चुके हैं इस चीज को कि अगर कानूनी रूप से कहा जाए, फॉर्मली का मतलब ऑफिशियली, ऑफिशियली द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विच हैड बीन इलेक्टेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. सब ध्यान दीजिए एक वर्ड पर. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अनडिवाइडेड इंडिया के लिए बनी थी. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनने के बाद डिवीजन हुआ है और फिर जो है ये इंडिया के लिए सिर्फ बनाया कॉन्स्टिट्यूशन. फर्स्ट इट वाज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड फॉर अनडिवाइडेड इंडिया. इट हेल्ड इट्स फर्स्ट सिटिंग ऑन 9th December 1946. It held its first sitting on 9th December 1946. These are facts to be remembered. So first sitting was on the 9th December 1946 and reassembled as Constituent Assembly for divided India now, on 14th August 1947. समझिए इस बात को कि ये 9th दिसंबर 1946 को पहली सिटिंग हुई थी. उसमें मुस्लिम वो जो कि अनडिवाइडेड इंडिया के लिए था. तो उसमें मुस्लिम लीग सब भी थे क्या? आप हमसे पूछ रहे हैं, कहानी सब देखे हैं, भूल गए? मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं कर रहा था ना. अच्छा सब तो आप देख ही चुके हैं कहानी. शिमला का. हाँ, but it was the Constituent Assembly had been made for the undivided India, entire India. But as you have seen in the video first part that the Muslim League did not participate and they were dominant, they were adamant, not dominant, adamant, जिद पर अड़े रहे. They were adamant for two constituent assemblies, one for the henceforth India and another assembly for the new country of Pakistan. So they were adamant that this constituent assembly, which was for undivided India, should not prepare constitution for the Pakistan and India as well. They wanted a different constituent assembly for Pakistan, and that's why they did not join the proceedings of constituent assembly. All this you have seen in the video. You should revise. I had told you that is why to revise. उसको रिवाइज कीजिएगा. एंड दस इट रीअसेंबल्ड, फिर से जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारा बैठा फाइनली, जो कि
अब डिवाइडेड इंडिया के लिए कब हुआ उसका बैठक पहला? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर डिवाइडेड इंडिया ऑन 14 अगस्त 1947। 14 अगस्त 1947 को डिवाइडेड इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की सिटिंग हुई, और जो आपने देखा है कि उसका इवनिंग में हुआ और रात के 12 बजे से जब इंडिया आज़ाद हो गया, आपने देखा है वो सारी चीज़ें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने डिक्लेयर किया कि नाउ एनी टाइम इट विल बी मिडनाइट एंड वी विल बी फ्री अकॉर्डिंग टू इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। एंड फ्रॉम देन व्हेन दे वर फ्री, then they started the process of making Indian constitution, because now they were not answerable to anyone else but only the people of India, not to the British government. Up to 14th August they were under British government. अच्छा, तो उतना साल तक हाँ. उसको जवाब देता था। Yes. So from 15th August, the midnight of 14 and 15th August, India became independent, and now they had become sovereign. तो इतना जो 6 महीना 7 महीना का जो उस समय ये लोग Because still the negotiations were going on, that you have seen in the video. तो ब्रिटिश दखल करता था। Definitely it was under British government. आप देखे तो हैं, Mountbatten is talking to all the parties and all that you have seen in the video. If you are not, better revise it. तो वो नेगोशिएशन चल रहा था, मुस्लिम लीग को बार बार कहा जा रहा था कि आप लोग ज्वाइन करिए। मुस्लिम लीग अपना 10 तरह का कभी कुछ कर रहा था, कभी कुछ कर रहा था, दंगे फसाद हो रहे थे। All these things you have seen. So finally on 15th August, that means from 14th August evening and in the midnight when India became independent, and the Jawaharlal Nehru, he gave his speech Tryst with Destiny at the midnight when India became free. Okay, its members were chosen by indirect election. Its members were chosen by indirect election by the members of provincial legislative assemblies that had been established under Government of India Act 1935. ये ध्यान दीजिएगा कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसके मेंबर्स का चुनाव कैसे हुआ था, कैसे उसके मेंबर्स को चुना गया था। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के द्वारा आपने पढ़ा है कि प्रोविंसेस में भी लेजिस्लेटिव असेंबली हर प्रोविंस में बनाया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था। तो उन प्रोविंसेस, जैसे आज के डेट में स्टेट में असेंबली होती है, विधानसभा होती है, वैसे उस समय जो प्रोविंसेस में लेजिस्लेटिव असेंबली थी, विधानसभा एक तरह से थी, उनके मेंबर्स के द्वारा चुना गया था कि कौन लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वहां से उन प्रोविंसेस से जाएंगे। समझ में आ रही बात? जो भी प्रोविंसेस में उस समय लेजिस्लेटिव असेंबली थे, जैसे आज राज्यों में विधानसभा है, तो उसके मेंबर्स के द्वारा चुना गया कि कौन कौन लोग जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उस प्रोविंस से जाएंगे। तो द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर इनडायरेक्टली इलेक्टेड। ठीक है ना, उनका डायरेक्ट इलेक्शन, लोग ने उनके लिए वोट नहीं किया था कि हाँ ये हमारे प्रोविंस से ये जाएंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, बल्कि उनको चुना गया था उन मेंबर्स के द्वारा जो लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स थे प्रोविंसेस। क्लियर? सब पूछा जा सकता है, पीटी में फैक्ट है, इसलिए सब चीज को याद रखना है। द मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर चोजन बाय इनडायरेक्ट इलेक्शन। डायरेक्ट इलेक्शन जैसे हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन, आम चुनाव होता है, वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है कि लोग एमपी के लिए वोट देते हैं, एमएलए के लिए वोट देते हैं कि हाँ इनको, वो डायरेक्ट इलेक्शन। लेकिन जब राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं वो इनडायरेक्ट, क्योंकि वो एमएलए लोग चुनते हैं या एमपी लोग चुनते हैं। यहाँ उसी तरह से यहाँ पर भी चुना। हाँ, वैसे ही यहाँ जो है एमएलए जो भी थे उस समय के प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबलीज के मेंबर जो थे, उन्होंने चुनाव किया कि कौन कौन लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे। The Constituent Assembly was composed roughly along the lines suggested by the plan proposed by Committee of the British Cabinet known as Cabinet Mission.
तो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था उसमें कितने कितने लोग कहाँ से कैसे आएंगे, उसका जो कॉम्पोजिशन था असेंबली का वो उसी तरह का था जैसे कि ब्रिटिश कैबिनेट मिशन जो आया था उसने जैसा सुझाया था। तो यू नो अबाउट द कैबिनेट मिशन दैट सम मेंबर्स ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट, वहां ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो कैबिनेट थे तो कुछ कैबिनेट मिनिस्टर्स कौन कौन आए थे कैबिनेट मिशन में? लॉरेंस पेथिक लॉरेंस, अलेक्जेंडर, एवी अलेक्जेंडर एंड स्टैफोर्ड क्रिप्स। क्रिप्स भी थे। तो these three were who were cabinet ministers. They had came and that was called as the cabinet mission. So this cabinet mission had suggested that how the members should be chosen from different provinces. So यही कहा जा रहा है कि the constituent assembly was composed roughly along the lines. Along the lines का मतलब होता है उसी प्रकार, उसी तरह से, ये फ्रेज है along the lines मतलब जैसा तरीका उसी तरीके से, along the lines उसी प्रकार से, उसी तरह से या उसी प्रकार से, उसी तरीके से, जो भी लिख सकते हैं उसी तरह से, यानी कि जिस तरह से कैबिनेट मिशन ने सुझाव दिया था कि इस तरह से चुना जाए वैसे ही चुना गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स। क्या था वो तरीका समझेंगे। अकॉर्डिंग टू दिस प्लान, अकॉर्डिंग टू दिस प्लान each province and each princely state or group of states were allotted seats proportional to their respective population roughly in the ratio of 1:10 lakh, यानी 10 लाख लोगों पर एक आदमी को भेजना था। तो रफली ये रेशियो तय किया गया था कि जो भी प्रोविंस है या प्रिंसली स्टेट या ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, अगर कुछ लोग ग्रुप अपना बनाए हुए थे तो चाहे कोई एक प्रोविंस हो या कोई प्रिंसली स्टेट या उसका ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो जो एक साथ अपना भेज रहे हैं, तो उनका जो सीट्स था वो उनके पॉपुलेशन के रेस्पेक्ट में रेशियो में था कि 1:10 लाख। जैसे कि आज भी यही हमारा जो पार्लियामेंट के लिए आज यही है, 10 लाख पर एक जो है मेंबर चुना जाता है। तो उस समय भी यही था कि 1:10 लाख या 1 मिलियन कह सकते हैं, 1:1 मिलियन, 1 मिलियन के पॉपुलेशन में एक रिप्रेजेंटेटिव जाना था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। As a result, the provinces that were under direct British rule were to elect 292 members, while the princely states were allotted a minimum of 93 seats. तो नतीजा ये हुआ कि जो प्रोविंसेस थे जो ब्रिटिश इंडिया के अंडर में थे वहां से 292 मेंबर्स को आना था, चुना जाना था, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनको मिनिमम 93 मेंबर्स, कम से कम 93 मेंबर्स चुनना था। तो ये था उस समय के मेंबर्स का कॉम्पोजिशन अनडिवाइडेड इंडिया में, कि जो ब्रिटिश इंडिया था उससे 292 सीट्स चुने जाने थे एंड फ्रॉम द प्रिंसली स्टेट्स minimum 93 people had to be elected. The seats in each province were distributed among the three main communities, Muslims, Sikhs and general, in proportion to their respective population. जो भी प्रोविंसेस थे उनमें सीटों का बंटवारा कैसे था? जो 3 मेन कम्युनिटी तय किया गया था, कम्युनिटी समाज को 3 हिस्से में बांट दिया गया था, एक था मुस्लिम, एक था सिख और एक था बाकी सब, यानी हिंदू कह सकते हैं, हिंदू के साथ और भी लोग जो भी हैं, बौद्ध, पारसी, जैन मिला के। तो 3 मेन कम्युनिटीज में बांटा जाना था, मुस्लिम्स, सिख्स एंड जनरल, इन प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन, उनके प्रोपोर्शन, उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंगली, ठीक है, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग। नाउ मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली
elected their own representatives by the method of proportional representation with single transferable vote, जो कि आज प्रेसिडेंट का इलेक्शन इसी मेथड से होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विथ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। याद आ रहा है फ्रेज, मैंने बताया था प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी सबके वोट का वैल्यू अलग अलग होता है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वोट जो होता है वो ट्रांसफर होता है, अगर कैंडिडेट नहीं जीता तो उसके सारे वोट अगले कैंडिडेट को चले जाएंगे। इस तरह से थोड़ा सा वो कॉम्प्लेक्स इलेक्शन का प्रोसेस, तो यही प्रोसेस वहां भी अपनाया गया था। मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी इन द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली इलेक्टेड देयर ओन रिप्रेजेंटेटिव्स बाय मेथड ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स को चुनने का वही तरीका अपनाया गया था जो आज किसका है देश में, सिर्फ प्रेसिडेंट के लिए फर्स्ट पांच द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। नाउ द मेथड ऑफ सिलेक्शन इन द केस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ प्रिंसली स्टेट्स was to be determined by consultation। प्रिंसली स्टेट्स कैसे चुनाव करेंगे, ये जो है उनके और यहाँ सरकार के बीच में तय करके वो आपस में राय सलाह से करना था कि कैसे वो चुनाव करेंगे अपने मेंबर्स का। ओके, फॉर मोर डिटेल्स विजिट दिस लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंट facts.html। इसका ज़्यादा डिटेल्स देखना है तो आपको यहाँ वेबसाइट दिया गया है जिस पे आप जाके और चीज़ों को इसमें डिटेल्स देख सकते हैं। यही सब लिखेंगे तभी खुलेगा। हाँ, ये एड्रेस दिया हुआ है, इसको कॉपी करिएगा वहाँ पेस्ट करिएगा तो खुलेगा। वेबसाइट का एड्रेस है तो वही एड्रेस दो। सो दिस इज द प्लान ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कैसे कैसे कितने मेंबर्स आपने पढ़ा पहले कि पहला जो फॉर्मूला तय किया गया कि चाहे वो प्रोविंसेस हो या स्टेट्स या ग्रुप ऑफ स्टेट्स हो, 1 मिलियन यानी 10 लाख पॉपुलेशन पर एक रिप्रेजेंटेटिव आएगा। इसके अनुसार जो ब्रिटिश इंडिया थे, जो डायरेक्टली अंडर ब्रिटिश थे, उससे टोटली 292 मेंबर्स हुआ, और जो प्रिंसली स्टेट्स थे उनसे मिनिमम 93 सीट्स का इलेक्शन करना था। सीटों को जो है जो चुनाव करना था वो 3 मेन कम्युनिटीज में बांटा गया था, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, जो कि उनके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग प्रोपोर्शन टू देयर पॉपुलेशन वो मिलना था। जैसे कहीं वो जो रेशियो में होगा उनका पॉपुलेशन, उसी रेशियो में वहां से उतनी उस कम्युनिटी से सीटें होंगी। समझ गए ये बात? देन मेंबर्स ऑफ ईच कम्युनिटी कैसे चुनाव करना था, यानी एक आदमी का चुनाव कैसे होना था, क्या मेथड था, आप पढ़े फर्स्ट पास्ट द पोस्ट, या जिसको कहते हैं यहाँ कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। जैसे देखिए आपका ध्यान यहाँ देंगे, जो आप यहाँ जनरल इलेक्शन में वोट करते हैं वो नॉन ट्रांसफरेबल वोट होता है, अलग चीज है। वहां वोट ट्रांसफर नहीं होता है कि हम वोट दिए किसी को वोट उसका चला जाए किसी को। तो जो जनरल इलेक्शन होता है वो डायरेक्ट इलेक्शन होता है, और उसमें वो क्या है, सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट के माध्यम से, अडल्ट फ्रेंचाइज विद सिंगल नॉन ट्रांसफरेबल वोट। लेकिन यहाँ जो तरीका है इसमें कहते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन विद सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, यानी मैंने वोट किया है किसी के लिए, लेकिन अगर वो नहीं जीता तो वो मेरा वोट उसकी जगह किसी और कैंडिडेट को ट्रांसफर हो जाएगा। जीता हुआ कैंडिडेट है उसको नहीं, जो उससे अगला कैंडिडेट होगा एक ऊपर, हाँ उसको ट्रांसफर। इस तरह मान लीजिए कोई दो ही को खड़ा है तो हाँ दो ही खड़ा रहेगा तो फिर डेफिनेट है कि उसको चला, दो में तो फिर बात ही नहीं, दो में तो फिर है कि जो वो जिसको कम है तो उसका अगले को चला जाएगा, तो दो में तो बात ही नहीं, तो कोई सेंसर नहीं है दो का, दो का कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका फर्स्ट पास वाला सिस्टम का कोई वैल्यू नहीं। नाउ यहाँ जो है आप देखिए एक आपका अंबेडकर जी का कोटेशन दिया हुआ है, इसको समझेंगे बहुत जो है मतलब कि वो सब है दो से ऊपर वाले के लिए। हाँ, दो से ज्यादा लोग हैं, उससे एक ऊपर मतलब कि एक ऊपर जो नहीं एक ऊपर नहीं, उसमें मान लीजिए 5 कैंडिडेट है, उसमें हम जिसको वोट दिए वो आ रहा है 4 पर, मान लीजिए ऐसे नहीं है, 4 बार पे नहीं है। देखिए होता क्या है कि उसमें
फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकंड प्रेफरेंस, थर्ड प्रेफरेंस ऐसे देना रहता है। वोट आप जैसे समझ रहे हैं, ये आप अपना जनरल इलेक्शन वाला सोच रहे हैं कि आप उसको वोट दें, वैसे नहीं होता है वोटिंग। वहाँ क्या है, आपको सब कैंडिडेट्स के लिए अपना प्रेफरेंस देना होता है। प्रेफरेंस पे हाँ, वोटिंग कि होता है। फर्स्ट प्रेफरेंस इसको हम दे रहे हैं, मान लीजिए कि वो नहीं जीतेगा तो तो सेकंड वो वाला पे चला प्रेफरेंस जाएगा। जो जो दिया रहता है उसका उसको चला जाता है, ऐसे सेकंड वाला होता पे है। चला हाँ जाएगा। हाँ, इस तरह से वो होता है। वो कॉम्प्लेक्स है, थोड़ा सा आसान नहीं है प्रोसेस समझना। उसमें आप ये समझिए कि वहाँ ऐसे नहीं होता, हम इसके एक सिंगल बोले ना, वोटिंग ऐसे नहीं होता है कि इसको दे रहे हैं। वहाँ होता है सबके लिए प्रेफरेंस देना पड़ता है। जैसे आप फॉर्म भरिएगा बीपीएससी यूपीएससी का, सब सर्विस में प्रेफरेंस देना पड़ता है। तो जो फर्स्ट प्रेफरेंस पहले काउंट किया जाता है कि किस किस को लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस दिया है। अगर फर्स्ट प्रेफरेंस में कोई अगर मेजॉरिटी हो गया, मेजॉरिटी प्रेफरेंस तब तो वो हो गया। हाँ, अगर नहीं है तो जो उसको सेकंड प्रेफरेंस दिए होंगे उसका वहां चला आएगा। इस तरह से शिफ्ट होते जाता है। इसका अलग वोटिंग, हाँ, पूरा सिस्टम ही डिफरेंट है। वोटिंग भी नहीं कहेंगे, हाँ, प्रेफरेंस। हाँ, प्रेफरेंस यहाँ देना होता है। जय जय जय।
So Trump no. says has spoken to Putin about ending Ukraine war. सब जो बोलते हैं टैरिफ मतलब ये टैक्स, हाँ टैक्स मतलब इसको हिंदी में शुल्क कर सकते हैं। हाँ हाँ डेफिनेटली शुल्क ही होता है टैरिफ। टैरिफ इज नॉट एग्जैक्टली टैक्स, इट इज बेसिकली ड्यूटी। शुल्क हिंदी में, हाँ शुल्क। और ये ड्यूटी इंग्लिश में लिख देते हैं। DUTY ही होगा था, कोई ज़्यादा तो ओके तो देखिए डॉक्टर अंबेडकर क्या कहते हैं कि वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ जो राजनीति में खाली एक डेमोक्रेसी है, यानी कि सरकार बनाने के लिए जहाँ सभी लोगों को अधिकार दिया गया कि सब लोग मिल के जिसको वोट करेंगे और जिसको वोट करेंगे मेजॉरिटी होगा वो सरकार बनेगी, ये हुआ पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। तो यही हमें समाज में भी डेमोक्रेसी लाना चाहिए, समाज में भी सभी लोगों का कहना हो। देखिए अंबेडकर, मैं आपको जो बोला वो अंबेडकर जी की बात, मैंने कहा कि एक छोटा बच्चा भी उसको अपना बात अपना राय रखने का अधिकार है। तो यही तो अंबेडकर कहते हैं कि समाज में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। समाज में ये नहीं कि केवल कुछ वर्ग है वो जो कहेंगे वही होगा, सबका उसमें, जैसे सरकार है, सरकार में क्या होगा, कैसे हो रहा है इलेक्शन, एवरीवन इज वोटिंग, नॉट ओनली सम पीपल, फ्यू पीपल आर वोटिंग। एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, कि जितने भी लोग एडल्ट हैं सब मिल के वोट करेंगे। उसमें ये नहीं कि वो अनपढ़ है कि पढ़ा लिखा है, बीए है कि एमए है कि पीएचडी है कि रिक्शा वाला है कि टेम्पो वाला है कि सब्जी वाला है। Only qualification is that he should be adult. If he has crossed 18 years of age, he can vote for the government. कि वो अपना वोट रख सकता है कि who he wants as the government, किसको वो चाहता है अपना रिप्रेजेंटेटिव। तो वैसे ही ये कह रहे हैं कि जो पॉलिटिक्स में हमने डेमोक्रेसी दिया वो सोसाइटी में भी डेमोक्रेसी होना चाहिए। समाज में भी क्या हो नहीं हो, किस तरह से कोई काम हो समाज में, क्या वो सबके पार्टिसिपेशन, सबके वोटिंग से होना चाहिए, सबका उसमें राय होना चाहिए। समझ रहे हैं सोशल डेमोक्रेसी का मतलब? कोई भी जो काम हो रहा है सामाजिक तौर पे, समाज में क्या हो किस तरह से, वो सबके द्वारा उसमें सबकी राय होनी चाहिए, दैट इज सोशल डेमोक्रेसी। तो वही ये कह रहे हैं कि वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिक्स, और ये देखिए शुरुआत इसकी होती है फैमिली से, इस बात को समझिएगा। सबसे पहले आदमी कहाँ करता है, अपने फैमिली में। आप अपने फैमिली में किस तरह का करते हैं? क्या आपके फैमिली में डेमोक्रेसी है? तो फैमिली में आप किस तरह का, क्योंकि वो फैमिली इज ऑल्सो स्मॉल यूनिट ऑफ सोसाइटी। जो आदमी फैमिली में नहीं डेमोक्रेसी करेगा वो आगे क्या डेमोक्रेसी करेगा? कभी वो डेमोक्रेसी का पक्ष लेगा? इफ ही थिंक्स दैट नो ओनली माय व्यू काउंट्स, तो सिमिलरली ही विल थिंक इन पॉलिटिक्स ऑल्सो। तो अंबेडकर यही कह रहे हैं कि वी मस्ट मेक आवर पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अ सोशल डेमोक्रेसी एज वेल। देखिए पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट until there lies at the base of it social democracy। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं, बहुत सब गुड़ वचन है, बेचारा जिंदगी भर उतना मेहनत संघर्ष करके बोला है, उसकी बात को सुनिए ध्यान से। कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी ज्यादा दिन तक नहीं चलेगी, अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी, अगर उसके नींव में सोशल डेमोक्रेसी ना हो तो। पॉलिटिकल डेमोक्रेसी अगर आप चाहते हैं कि वो लंबे समय चलता रहे लगातार, तो उसके लिए आपको सोशल डेमोक्रेसी भी उसके नीचे होनी चाहिए। जब आप समाज, पहले क्या हो रहा था, आपने कुछ आपको अनुभव होगा, जो है कुछ पहले का जीवन का ये होगा कि पहले क्या होता था, बूथ कैप्चर कर लिया, दबंग लोगों ने जो है वोटर्स को डरा दिया, धमका दिया। हाँ, और उन्होंने, ये क्या है, दैट इज सोशल डिक्टेटरशिप, कि भाई हम दबंग हैं, हम इस जाति के हैं, हम ये हैं, तो हम हमारे हिसाब से वोटिंग होगा, डरा धमका के, चाहे हम जाति के नाम पर करें
या बाहुबली हैं, बंदूक और गुंडे सब रखते हैं, उनके आधार पर करें, जैसे करें हमारे हिसाब से फैसला होगा और लोगों को उनकी मर्जी से वोट नहीं करने देंगे। तो वही ये कह रहे हैं कि जब समाज में डेमोक्रेसी नहीं होगा तो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहां से, फिर वही ना हो रहा था कि जो अभी आप क्या देखते हैं फिल्मों में दिखाता है, अभी भी वही चल, गुंडों का सपोर्ट लेके नेता जीत जाता है, मंत्री जीत जाता है, गुंडों को मेंटेन किए हुए है कि पॉलिटिक्स चुनाव आएगा, डरा धमका के वोट दिलवा देगा, हो जाएगा, बाकी पब्लिक से मुझे क्या काम। सो वही ये कह रहे हैं कि पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कैन नॉट लास्ट अनलेस देयर लाइज एट द बेस ऑफ इट सोशल डेमोक्रेसी। जब तक उसके बेस में सोशल डेमोक्रेसी, समाज में डेमोक्रेसी नहीं होगा तो पॉलिटिक्स में भी डेमोक्रेसी नहीं होगा। आप नाम मात्र के लिए इलेक्शन करवा लीजिएगा, चुनाव करवा लीजिएगा, लेकिन चुनाव में क्या होगा, वही लोग जो डरा धमका के लोगों को रखते हैं वो वोट भी दिलवा देंगे उनसे और फिर अपने पसंद का नेता चुन के भेज देंगे, तो कहाँ की डेमोक्रेसी रही। बट नाउ थिंग्स हैव चेंज। आज मैं ये अपने अनुभव से कह सकता हूं कि चीजें बहुत बदल चुकी हैं। जब से फ्री एंड फेयर इलेक्शन का कंसेप्ट किसने लाया, टीएन सेशन ने लाया। जब इंडिया में बूथ कैप्चरिंग को रोका, टीएन सेशन, और टीएन सेशन ने इस देश का इतिहास को बदल दिया, डेमोक्रेसी को बदल दिया। जो एक समय बूथ लूट के, बूथ कैप्चरिंग और ये सब करके पावर के बल पे, पैसे के बल पे, हालांकि अभी भी पैसे का जोर तो चल ही रहा है, बट इट हैज रिड्यूस्ड टू अ वेरी लेस। नाउ द रियल डेमोक्रेसी इज कि आज भाई आपको जाके सबको मनाना ही पड़ रहा है, हाथ जोड़ना ही पड़ रहा है, उसकी बात को सुनना ही पड़ रहा है। आज को ये सोचेगा कि खाली पैसे के बल पे, जैसे मेरा एक कलीग है वो पैसे के बल पे सोच रहा है कि पैसे के बल पे सीट जीत जाएंगे और टिकट मिल जाएगा, ही डिड नॉट गेट एट द लास्ट मोमेंट। तो टिकट लेने के लिए पैसा देना पड़ता है, उसमें क्यों? नहीं, पैसा देना नहीं, मैंने पैसा वैसा खर्च करके, मतलब वो पैसा अननेसेसरी खर्च करेगा वहाँ बहुत सारे इवेंट में, तो मतलब पैसे, अरे भाई जब तक आपके मन में जनता के सेवा का भाव आज नहीं रहेगा, यू कैन नॉट विन। आज वो समय नहीं है कि आप खर्च करके पैसे का रुतबा दिखा के 10 तरह का लोगों को इन्फ्लुएंस करके खिला पिला के सब करके जो है और अपनी अमीरियत का दिखा के रुतबा आप वोट जीत जाएंगे और सीट ले लेंगे। तो बीजेपी ने ये वो कर दिया, अंतिम समय में उसको लटका दिया, ठीक है, तो फिर छोड़ दिया, दूसरा बीएसपी ज्वाइन कर लिया। बहुत दिन तक बीजेपी में रहा, बीजेपी ये है, ये भैया फिर जो है हो गया कि तो कहने का मतलब है कि जब तक सोशल डेमोक्रेसी नहीं, समझिए इस बात को, सोशल डेमोक्रेसी नहीं होगा तब तक पॉलिटिकल डेमोक्रेसी नहीं चल सकता है। दिखावे के लिए कुछ दिन रहेगा लेकिन इट कैन नॉट लास्ट। आज क्या है, आज रिजर्वेशन का पॉलिटिक्स चल रहा है, बैकवर्ड्स का मतलब सो कॉल्ड जिनको बैकवर्ड्स कहा जाता है, जो भी बैकवर्ड कास्ट है, जो भी नाम दिया जाता है, उनका पॉलिटिक्स चल रहा है। आज देखिए, आज इतना सब अम्बेडकर को क्यों प्रिय हो गए, आज तक कोई अम्बेडकर का नाम नहीं लेता था एक पर्टिकुलर वर्ग को छोड़ के, आज सब अम्बेडकर, इतना सबको क्यों प्रिय हो रहा है कि लग रहा है घर में मूर्ति बना के उसका पूजा करेगा, because the caste census and the census figures have come which are showing that the population of the backward and dalit castes are much higher। और भाई वोट आपको लेना है, तो वोट लेना है तो अम्बेडकर जी प्रिय हो ही जाएंगे आज सबको। आज सबको अम्बेडकर अम्बेडकर जप रहा है, किस लिए? अब हो सकता है उसमें कुछ अच्छा इंटेंशन, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि गलत इंटेंशन है, their intentions may be fine, but yes, the purpose is to gain the votes of the so called backward or scheduled castes। पर्पस तो वही है कि उनका वोट लेना है। सो व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? अब यहां क्वेश्चन आ रहा है कि व्हाट डज सोशल डेमोक्रेसी मीन? सोशल डेमोक्रेसी का क्या मतलब है, जो मैंने आपको समझाया अभी, सोशल और डेमोक्रेसी यानी सोसाइटी, डेमोक्रेसी इन सोसाइटी। सोसाइटी में क्या होता है, समाज के फैसले होते हैं, क्या कहाँ होगा,
कैसे होगा, छोटी छोटी बातों पर समाज में होता है। लेकिन उस पर है कि हाँ समाज में सब लोग हैं, गांव में सब तरह की जाति रहते हैं, तो सबसे राय सलाह करके करना चाहिए। तो यही है सोशल, क्या है, इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ, इट मीन्स अ वे ऑफ लाइफ which recognizes liberty, equality and fraternity as the principles of life. सोशल डेमोक्रेसी का मतलब है एक ऐसी जिंदगी जीने की, ऐसी तौर तरीका जीने का, ऐसा तरीका जिसमें सबकी आजादी, लिबर्टी आजादी, इक्वालिटी बराबरी, समानता एंड फ्रेटर्निटी और भाईचारा, उसको ही जिंदगी का सिद्धांत समझते हैं लोग। इस तरह के जीवन शैली को कहते हैं सोशल डेमोक्रेसी। यानी लिबर्टी, आजादी है सबको। अब देखिए क्या करते हैं गांव में, वो उस कास्ट का घोड़ा चढ़ के आ गया, कैसे घोड़ा चढ़ गया उस कास्ट का, मार हो गया। स्वतंत्र और आजादी के सेंस में फर्क है, थोड़ा सा फर्क है, लिबर्टी और फ्रीडम में अलग अलग फर्क है। तो जैसे कि अभी भी देखिए समाज में अक्सर ऐसे न्यूज आते रहते हैं कि उस टोले का इधर से बारात निकाल दिया, बस लोगों में लड़ाई हो गई, कैसे इधर से निकाल लिया, हमारे टोले से कैसे लेके चला गया। तो भाई रास्ता आपके बाबूजी बना के गई, जमीन आपके बाबूजी करके गए थे। मैं ये कहता हूं कि रास्ता जो है वो सबका है, कॉमन, क्यों नहीं जाएगा भाई? अभी आप चढ़ रहे हैं तो क्यों नहीं चढ़ेगा? तो इट मीन्स लिबर्टी एंड वे ऑफ फ्रीडम, कि हाँ हमको जो मन है, सबको आजादी है, आपको आजादी है तो उसको भी आजादी है, क्यों नहीं आजादी है? इट इज द माइंडसेट, हेगेमोनियल माइंडसेट, कि हम हैं, हम, हमारा ही होगा, हम चढ़ सकते हैं, हम कर सकते हैं, ये लोग कैसे करेगा? दैट माइंडसेट, एंड इट लीड्स टू देयर ओन डिटेरियोरेशन, उन्हीं का पतन होता है। उनको नहीं समझ में आता है कि हमारा ही पतन हो रहा है, बट दे लिव इन देयर ओन वर्ल्ड, अपनी दुनिया में जीते हैं। क्या कहते हैं माइंड से कि हम ही हैं, हम जो हम बोलो, हेजेमोनी, HEGEMONY, HEGEMONY, अपना, हम ही हैं, सेल्फ सुप्रीमेसी। हम ही रहे काबिज, कोई दूसरा नहीं रहे। हाँ, जहां भी है तो हमारा ही नाम रहे, हम ही पावर में रहे, दूसरे को कोई अधिकार नहीं रहे। ओके, सो लिबर्टी, इक्वालिटी, बराबरी। तो अब ये भी क्या कहें कि मतलब कीड़ा है जो सबके दिमाग में डाल दिया गया है, ये भी सच्चाई है। अब वो भी ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि उसके बाप दादा परिवार उसका ऐसा सिखा दिया होगा उसको, तब ना उसके माइंड में ऐसा विचार है। हमको हमारे गुरुओं ने जो सिखाया, हमारा वो विचार है। मान लीजिए मेरा भी कोई गलत विचार है, तो किसी ने सिखाया तब ना मेरा वैसा विचार होगा। तो उनको भी किसी ने सिखाया, इसलिए उनके मन में ऐसा विचार है। तो उस विचार को बदलने में समय लगेगा। वो विचार तो है, वो रियलिटी है ना, वैसा सोच रहा है, इसका मतलब दैट इज रियलिटी। उसको हमें बदलने में समय लगेगा। सो दैट इज लिबर्टी, इक्वालिटी, इक्वालिटी, सब बराबर है। उसको ये नहीं पता, पैदा हुआ तो सब एक ही जैसा पैदा हुआ। भगवान पैदा होने का कोई दो रास्ता नहीं बना है और दो तरीका नहीं बना है। जो पैदा हुआ सब नंगा वैसे ही पैदा हुआ, कोई कपड़ा पहन के नहीं, कोई सोना पहन के नहीं पैदा हुआ, सब वैसे ही पैदा हुआ। ठीक है, तो इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, भाईचारा,
तो भाईचारा कहाँ से भावना रहेगा भाईचारे का? जब वो बराबर समझेगा तब ना भाईचारा। इक्वालिटी से फ्रेटर्निटी आता है। जब आप किसी को समझते हैं अपने जैसा, तब उसको आप समझते हैं कि ये भी हमारे भाई जैसा है, ये भी हमारे ही जैसा है। नहीं तो आप उसके तरह तरह के, अरे वो उस जात का है, वो हिंदू है तो वो मुसलमान है, तो वो ये जाति का है तो वो जाति का है, वो यहाँ का रहने वाला है, वहाँ का रहने वाला है, वो पैसे वाला इतने पैसे वाला है, हम इतने पैसे वाले हैं, बहुत सारी तरह की चीज़ें, वो ये बोलने वाला है, हम ये भाषा बोलने वाले, बहुत तरह की चीज़ें आ जाती है। बट वेन यू आर फ्री फ्रॉम दीज प्रिजुडिसेस, देन यू थिंक कि जैसे हम है वैसे वो है, हम हिंदी बोलते हैं, बंगला बोलता है, हाँ, हम सब्जी खाते हैं, वो मछली खाता है। I was in Kashmir and the Eid was coming, Bakrid, और वहाँ वो लोग जो है गाय के बछड़े को सेक्रीफाइस करते हैं। गाय के बछड़ा को बांधे हुए था, उसको सेवा उसका होता था, उसको रखे हुए थे 1 आध महीने से। इट इज बीइंग फेड प्रॉपरली, टेकन केयर, उसको बहुत ध्यान से रखा जाता है। उसको ठंडा, जैसे आदमी घर का आदमी को करता है कि उसको ठंडा गर्म नहीं लगे, वैसे उसको भी रखा जाता है बहुत देर से। तो रखा हुआ था, एंड दे वर गेटिंग वरीड कि भाई ये तो बहुत ही स्टॉन्च हिंदू हैं, एंड ही माइट फील हाउ ही विल फील, दे वर फीलिंग अनकंफर्टेबल। आई आस्क्ड हिम, पहले मैं गया उनके यहाँ तो मैं देखा बाहर बछड़ा बंधा, मैंने पूछा तो बेचारा बताया हमको हेजिटेट करते हुए कि इट इज फॉर द सेक्रीफाइस। अच्छा, बलि देना जो होता है वही सेक्रीफाइस। हाँ, बलि को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस ही का मतलब बलि हो गया, त्यागना ना हो गया। सो देवर, नहीं वो भी वही मतलब होता है। आदमी को मारते हैं तो ह्यूमन सेक्रीफाइस करते हैं, नर बलि। तो दे वर फीलिंग अनकंफर्टेबल एंड आई सेंस्ड इट कि दे आर फीलिंग समवट अनकंफर्टेबल, हाउ आई विल फील। सो आई मेड इट क्लियर टू देम कि माय रिलीजन इज हिंदुइज्म एंड यू आर मुस्लिम। I will follow my own religion, you will follow your own religion. Why should I object to your religious feeling? What right I have to object to your religious practice? You are doing it for your own religion, and I also understand that, I know that. तो मेरे लिए तो एक ये है कि मैं तो जानता हूँ उस चीज के वास्तविकता को मैं जानता हूँ कि क्यों और क्या होता है। नहीं जानता तो हो सकता है कि ऐसा कुछ सोचता, but I know it in very detail, even when very few Muslims know that, and that I know. Why should I object? मैं आपके घर में ऑब्जेक्ट करने वाला कौन होता हूँ? अगर मैं कुछ भी सोचता तो भाई ना तो मेरे घर में हो रहा है, ना मेरे गाय का हो रहा है। Cows are very dear to me, that is one thing. But I do not have any authority and do not have any right to interfere in your religious custom. So don't feel worried or uncomfortable. I am not biased with such views. You are free to do your own religious practice. So they were very pacified and they trusted me, they respected me a lot. Not only for this, when I told you when I went to Kashmir and I found the best people in all over India. ट्रेन बन गया है कटरा से। हाँ, I found that the people there are so innocent and so, मतलब I will just narrate you one incident. देखिए ये चीज़ों से जुड़ा हुआ है, कहीं ना कहीं समाज से, देश से जुड़ी हुई बातें मैं आपको बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि मैं जस्ट अ पर्सनल स्टोरी। The family with which I was living, so the lady was telling me that once what happened, that I had got a son after a long time, and I was very much tortured by my in-laws, my husband's parents, his uh, siblings, brothers, sisters, whatever, that I was not bearing a son. तो बेटा ही चाहिए। Yes, I was not even given food by these people. I was kept hungry and so much torture. She started crying. कहाँ का बात है? Kashmir. अच्छा, वहाँ पे आप गए थे तो देखे थे? नहीं, she told me. जिसके घर पे आप लोग थे? हाँ, she told me her own story. And she was speaking about my friend
who was a child at that time, first child. So she told that, बुजुर्ग महिला थी। of course, she told that this was my first son and I was so happy that I got a son, and I always took him with great love and I always kept him with me. I never left him. So what happened once ki some foreign couple were roaming in the area. They had come for traveling and they saw my child. He looked very fair. He was very handsome. Kashmiri people are very fair and handsome. So they just asked me my baby to, just they wanted to touch it, and also I gave it to them in that mother's, the lady's lap, and they started caressing and loving, and then after some time they told that please give us this baby, we will pay you a lot of money. We do not have any children, so please give me this baby. They started praying to me, please give it, and I started crying that no, I have got it after a so difficult and I cannot give it to you, please understand. उसमें बच्चा था वो baby। Yes, it was just 1 year old or something. So they started telling that I will give you a lot of money. I said no, what will I do with my money? My husband will drive me out of my house if he knows about this and that, and also I cannot give you, it is my only child I have got after a lot of difficulty. Then there were some rich people, so some people came in their support, मतलब कुछ लोग उनके साथ होंगे जो उनके लाए होंगे घुमाने करने, वो भी इनको डराने धमकाने लगी कि दे दो दे दो दे दो, क्या है रे, बच्चा हो जाएगा, you will get a lot of money. But I started crying and I started shouting for help, please help, they are taking my children. उसको डर लग गया कि कहीं मैं जबरदस्ती न लेके चले जाए, कोई है नहीं अभी मेरे साथ. So she started, and then villagers then gathered, and then they returned her child. She was narrating this incident, and her husband, who was an old man, he was sitting beside. You know what he replied? दे दी होती, क्यों नहीं दी बेचारों को, बताओ तो उनको औलाद नहीं थी, तुमने दिया नहीं उसको बच्चा. Can you believe? He said कि क्यों नहीं दी, बेचारे कितने तकलीफ में होंगे, तो हमको बताई नहीं कभी ये बात, बिना औलाद के थे और तुमसे इतना मन्नत करते रहा, तुम दी नहीं, कैसी तुम औरत हो. They were in so grief and they were requesting you for a child. They were childless and you did not give him. How could you do this? I was surprised, and it was an honest, not that he was saying in front of me. He is such a person. He said, why did you not do? Allah will not give you do this well. They were childless couple and they had asking you for a child. You should have given them readily. You became selfish and you did not give them. And then she started, you would have driven me out of my house, and if I told you also, and my in-laws had come to know, they would have burnt me, and this and that. No, he said, you have done a big wrong. You should have given him. Allah ki marzi hoti, we would have got more children. But when someone was asking you for help and they did not have their children, then you should have given him without any money. There is no issue of money. You should have given them readily. And she started, देखिए कैसे कह रहा है अभी ऐसे ऐसे, अब मुझे उस समय लोग जिंदा नहीं छोड़ते, मैं दे दी होती कहीं तो. But that old person, he's so principled. And so I have seen, not only him, whoever I met in Kashmir, they were so good people, so good natured, so willing to help anyone, not harboring any evil thought in their minds. They are very religious. But the problem is that some people, they are brainwashing them and creating anti-India feelings in their mind. And the youth are waylaid easily. यूथ जो है जिसके पास काम नहीं है, तो उसको वो थोड़ा सा लालच करके कुछ दिखा के अपने अट्रैक्शन में फंसा लेते हैं, उनसे गलत काम करवाते हैं, पत्थरबाजी करवाते हैं, बंदूक दे देते हैं. बेचारे उनको पता भी नहीं, समझ में भी नहीं होता है कि बंदूक उठाने का क्या मतलब है. And they are termed as terrorists. So I tell you that, you cannot believe. I stayed there, and after when I was coming from there,
all the people, nearby people, they came to me and they gave me so much अखरोट. उनके पास वहाँ अखरोट के ही पेड़ होते हैं. दे आर सिंपल पीपल. सो वो मुझे ला के अपने अपने सब घर से अखरोट, इतना सारा अखरोट मुझे. उसमें दाम कितना रहता है अखरोट का? दाम जो होगा भाई, अखरोट उनके अपने घरों के अखरोट थे, पेड़ के अखरोट थे. वो लाला कि इतना कि हमारी तरफ से ले लो, हमारी तरफ से. हम कहे इतना अखरोट मैं क्या करूंगा ले जाके. बट देन प्लीज एक्सेप्ट इट एज आवर गिफ्ट. ऑल द पीपल दे केम. मैंने कुछ उनके बच्चों को भी पढ़ाया. उसमें बोर्ड एग्जाम था. सो दे सेड कि दे केम टू नो. 15 डेज लगभग में रहा था. So they came to know actually that person, that old person, my friend's father, he told everyone he is very learned and he is very wise. So they, some of the girls who are appearing board exam, they came कि sir हमारे यहाँ स्कूल नहीं चलता है, ये नहीं है, बोर्ड एग्जाम है, कुछ हमें अगर बता देते, आप इंग्लिश पढ़ा देते. हम कहे ओके, आई विल टीच यू. सो फॉर 2-3 days I taught them. भी नहीं चलता है. नहीं, there is no one to teach there. So they came, then I said okay, do one thing. जो भी कॉलोनी के हैं इस तरह के बोर्ड एग्जामिनेशन में बैठो, मैं आपको कुछ 2-3 दिन जो हूँ I will teach you and guide you. And I taught them. So they are so, you cannot believe मतलब what experience I had. And they were so good people, so good. I will tell it to anyone. I tell, सच्चाई से मैं पीछे नहीं हटता हूँ. Very good people. लेकिन हाँ, उनके कुछ प्रॉब्लम्स उन्होंने भी सहा है, झेला है. वहाँ कहीं ना कहीं सिस्टम्स, खैर जो है तो सब पॉलिटिक्स भी है, बहुत सारी बातें हैं. सो कहने का मतलब है कि दैट इज, अब देखिए आज उनको वो काम की तलाश में इधर आ नहीं पाते थे. कट ऑफ हो जाता है कश्मीर, तो वो इंडिया से कट. अब देखिए उनको ट्रेन्स बनाया जा रहा है. उनको पहले उनको दिल्ली में आते थे जब काम के लिए, कोई चीज़ के लिए, तो उनको कोई रहने के लिए घर नहीं देता था कश्मीरी के नाम. अब हाउ ही विल फील. लोग कहते हैं कि कश्मीरी एंटी नेशनल है, एंटी नेशनल है, इंडिया है. वो इंडिया का पार्ट कैसे फील करेंगे? आप उनको इंडिया का पार्ट फील कहाँ करने देते हो? वो जब दिल्ली आता है तो उसको आप कोई रहने के लिए घर तक नहीं देते हो, रूम तक नहीं देते हो कि नहीं कश्मीर से है. वो क्यों समझेगा कि ये लोग हमें अपना समझते हैं? वाई विल ही फील इंडियन? सबको दे रहा है रूम, और जब कश्मीरी का जान गया तो उसको कोई रूम देने के लिए तैयार नहीं. लगता है कि कोई टेररिस्ट है कि क्या है. तो वाई दे विल फील? It is our own, and the government is now doing many things which has improved their trust, and they are also. देखिए आज पटना में लग रहा है इतने, अभी कल आपने सुना यहाँ आके बेच रहा था, ऑफ कर रहा था, है ना, शॉल चादर ये सब बेच रहा था. So they are traveling all over India now to sell their products, to do their business, and that is why they are mixing in the society. They are coming to know कि नहीं यहाँ भी लोग हमारे जैसे हैं, हमारे बारे में अच्छा सोचते हैं. ठीक है, तो दैट इज व्हाट दिस सोशल डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी. ये नहीं खाली कि हाँ कश्मीर है, कश्मीर. अरे कश्मीर के मुद्दे तो समझो. वहाँ के लोग, वहाँ आपका टेलीविजन सिग्नल जाता नहीं है, रेडियो, आप वो पाकिस्तान का टीवी देखते हैं, पाकिस्तान का रेडियो सुनते हैं, तो वो नेचुरल है कि उसके फेवर में सोचेंगे. अब इधर जब मैं गया था वहाँ, उसके बाद से मैंने इस चीज़ को रखा था बहुत जगह लोगों के सामने, लेकिन खैर संजोग से दिमाग खुला सरकार का. वहाँ उन्होंने अपना रेलवे टीवी स्टेशन वगैरह चालू किया, रेडियो सर्विस शुरू किया, तो धीरे धीरे लोगों में जुड़ाव हो रहा है. दे आर नाउ थिंकिंग फॉर इंडिया. जब आपका कुछ है ही नहीं वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर, तो वो इंडिया के बारे में क्यों सोचेंगे? तो इट इज हाउ वी कंसिडर अदर्स. देखिए एक और इंसिडेंट, व्हेन आई वाज गोइंग टू अनंतनाग, नहीं, व्हेन आई वाज गोइंग टू, यस, अनंतनाग फ्रॉम श्रीनगर, तो मैं एक शेयर्ड कैब में बैठा. बड़ा सा कैब था जिसमें 7-8 लोग बैठ सकते थे. तो आई ऑल्सो सैट इन दैट. तो मेरे बगल वाला मेरे हमको देखते ही समझ गया, ही अंडरस्टूड दैट इज नॉट एन कश्मीरी. तो मुझे बोला तुम हिंदुस्तान से आए हो? ऐसे मैंने बोला हाँ. तो मैंने उसको देखा तो आई अंडरस्टूड दैट ही इज फीलिंग एनिमिटी टुवर्ड्स मी. हाँ, कैसे टेढ़ा करके देख रहा है. हाँ, तो फिर मैंने कहा कि देखो मैं इससे बात करता हूँ. पहले तो वो बहुत टेढ़ा करके ऐसे देख रहा था अजीब सी नजरों से. मैंने ही उससे बातचीत करना शुरू किया, कुछ कुछ ऐसे ही. एंड विल यू बिलीव that in 1 hour journey, it was 65 kilometers, 1 hour journey,
At the end of journey, he had got so cordial with me that he was inviting कि please come and stay at my house. Please, please come. I said कि no, I have promised my friend I will visit his house, so I have to go to his house. No, no, please come. I said कि I cannot. I have already promised him and he is waiting for me. He said कि okay, do one thing, please. After some days, if you get some time, please visit. He gave his address and all. Please visit. He was so friendly. See, the person who was feeling enmity. Why? Because he thought I am come from Hindustan, India. And in 1 hour, within 1 hour, he changed his whole outlook and he was so friendly. He chatted with me entire way. So it is our own feeling, how you behave to others, how you regard others. I regarded him as my friend, as my brother, just like I am any other person. He is also like that. He is also Hindustani Indian. So I talked him in a good way. He also replied similarly, started him. Then he changed his outlook. Yes, he is a good person. And he started talking to me, mixing with me within 1 hour. So this is how our outlook, how we think about others. समाज यही है और कुछ नहीं. जितनी बड़ी बड़ी बातें हैं कुछ नहीं है. हम दूसरे को बस कैसे किस नजरिए से देखते हैं, बस यही है सब. So what Ambedkar is talking that कि social democracy means liberty, equality and fraternity. लेकिन यहां पर मैं कहूंगा अंबेडकर जी का यही एक चीज जो ये था, जो उनकी कमी रह गई, कि कभी आप किसी को जबरदस्ती दोस्ती नहीं कर सकते हैं किसी से. दोस्ती के लिए प्यार से हाथ बढ़ाना पड़ता है. मैं उस जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि एक पर्सन था, जस्ट बिकॉज आई वाज फ्रॉम ही वाज फीलिंग एनिमिटी. अब मैं भी ईगो बना लेता है, मेरे बारे ऐसा सोच रहा है, ऐसा सोच रहा है, तुमको रिस्पेक्ट करना चाहिए तुमको. तो would he have given that feeling? No. I took my own initiative. Despite his stern looks, I talked to him in a friendly manner, and he responded, and he also gradually he became friendly. तो किसी को अपना या अपने मिलाने के लिए आपको भी प्रेम भरा, ये आप किसी से लड़ झगड़ के प्रेम नहीं पैदा कर पाओ. दोस्ती, प्रेम पैदा करने के लिए आपको दोस्ती का ही व्यवहार करना पड़ेगा. कहा गया है कि प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगा. जबरदस्ती न इज्जत करवाया जा सकता है, न जबरदस्ती किसी से प्यार करवाया जा सकता है, न जबरदस्ती. हाँ, रेस्पेक्ट बोले, इज्जत नहीं. So देखिए, these things are how we treat our fellow men, how we treat others. You know, even the youngers who are very young to me, I also spoke to them with respect. मैं उनको भी नाम नहीं लेता था, उनको जी कहता था किसी को. हाँ, अच्छे से, आदर से. ये नहीं कि जूनियर है तो उसको कुछ भी बोल रहे हैं, बुला रहे हैं, भले कितना हमसे यंग में कम है. So they also reciprocated, they also respected me. मतलब आप जो किसी को ऐसा वो नहीं करते थे जो हमको रेस्पेक्ट करते थे. तो रेस्पेक्ट इज ऑलवेज म्यूचुअल, लव इज म्यूचुअल. सो देखिए आगे देखते हैं. दीज प्रिंसिपल्स, देखिए, दीज प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी are not to be treated as separate items in a trinity. यहां समझेंगे ये तीन जो कंसेप्ट है, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी, ये तीनों को अलग अलग नहीं समझा जा सकता है. ये तिगड़म में से एक अलग लिबर्टी है, एक फ्रैटर्निटी है, एक इक्वालिटी है. ये तीनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. जैसे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन में आपने पढ़ा प्रियम्बल में कि टू क्रिएट इंडिया इनटू अ सॉवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक. आप अगर उस प्रियम्बल को देखेंगे टेक्स्ट में, उनके बीच में कहीं कॉमा नहीं है.
हमेशा वर्ड्स के बीच में कॉमा होता है, हाँ ये लगातार है। लेकिन इनके बीच में कॉमा नहीं दिया गया, because all these 5 words they are interconnected and exist together, not even single of them can exist separately. आप सोचे कि बाकी 4 रहे और एक अलग रहे, ऐसा नहीं, वो पांचों एक दूसरे, पांचों रहेंगे तभी सब रहेंगे, एक भी हट जाएगा तो चारों खत्म हो जाएंगे। वैसे यहां पे कहा जा रहा है कि लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी, ये तीनों में से एक भी अलग होगा तो बाकी दोनों भी खत्म हो जाएंगे, तीनों एक साथ रहेंगे और एक साथ हमेशा रहेंगे, तभी तीनों ही रहेंगे। सो लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी यानी आजादी, इक्वालिटी बराबरी और भाईचारा, ये तीनों रहेगा तभी समाज में सोशल डेमोक्रेसी रहेगा। आप सोचें खाली पहले आजादी दे देते हैं और भाईचारा नहीं दे, तो आजादी का क्या मतलब जब बराबरी ना हो, जब भाईचारे की फीलिंग ना हो, तो ऐसी आजादी किस काम की? और जहां आजादी भाईचारा है लेकिन आजादी नहीं है, तो क्या भाईचारा है? तीनों होना चाहिए, तीनों होना चाहिए। लिबर्टी, लोगों को अपनी आजादी होना चाहिए, जिसको जो मन है कर सके विद इन द लॉ एंड ऑर्डर ऑफ स्टेट। इक्वालिटी, बराबरी होनी चाहिए कि हाँ, क्योंकि बराबरी नहीं होगी तो डिस्क्रिमिनेशन, और डिस्क्रिमिनेशन होगा तो फिर भाईचारा रहेगा? एक बात बताइए, जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा वहां भाईचारा रहेगा? भाइयों में भी भाईचारा खत्म हो जाता है डिस्क्रिमिनेशन के कारण, भाइयों में भी भाईचारा, भाईचारा का मतलब खाली भाई होना या भाई होना नहीं होता है, भाइयों में भी भाईचारा नहीं रहता है। जब तक वो एक दूसरे के प्रति सिर्फ इतना समझते हैं कि हम भाई हैं, तब तक तो रहता है भाईचारा। जहां कुछ और हो गया कि वो ये पहन रहा है हम ये पहन रहे हैं, वो ये खा रहा है हम ये खा रहे हैं, उसको ये मिल रहा है हमको ये मिल रहा है, बस भाईचारा वहां खत्म। फिर तो वो एंटी हो जाएंगे एक दूसरे के, और कंपटीशन हो जाएगा शुरू, और कंपटीशन से फिर कहीं ना कहीं एक उसमें एक हेट्रेड आ जाएगा, जेलेसी आ जाएगा, उसको ये मिल रहा है हमको ये मिल रहा है, फिर भाईचारा नहीं रहेगा। Okay, so these three form a trinity. They form a union of trinity in the sense that to divorce one from other is to defeat the very purpose of democracy. ये कहते हैं कि ये तीनों एक ट्रिनिटी की तरह यूनियन बनाते हैं, जो किसी एक के बगैर अधूरे हैं तीनों में से। हाँ हाँ, ट्रिनिटी त्रिदेव नहीं, वो हिंदी में कहते हैं ट्रिनिटी का मतलब होता है तीन चीजों का मिक्सचर, कंसिस्टिंग ऑफ थ्री। तो यूनियन ऑफ ट्रिनिटी इन द सेंस दैट टू डिवोर्स वन फ्रॉम द अदर, मतलब एक को दूसरे से अलग कर देने से, इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ, उससे क्या है, डेमोक्रेसी का जो कारण है वही डिफीट हो जाएगा। डिवोर्स होता है कि डाइवोर्स होता है? अब हम तो डिवोर्स ही जानते हैं, चलिए आप कहें तो देख लेते हैं, क्योंकि आप बात सही गलत की उठा दिए। ऐसे तो हम कहते हैं कि हम डिवोर्स डाइवोर्स सब होता है, हम डिवोर्स कहते हैं, लेकिन अब आपने सही गलत की बात उठा दी ना, तो वो तो देखना पड़ जाएगा कि भाई हम भी गलत बहुत सा अलग सब चीज़। नहीं नहीं नहीं, मतलब चूंकि आई हैव लेफ्ट दीज थिंग्स अ लॉन्ग टाइम अगो, बहुत साल से मैं बोला कि अभी डिक्शनरी कंसल्ट ही नहीं करते, क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो देखना ज़रूरी है। नहीं, इट इज़ नहीं नहीं, वो हिंदी मूवी में तो बोलेगा सो नहीं, वही है, डिवोर्स ही है, डिवोर्स। हाँ तो वो बोलेगा, हिंदी मूवी में तो बहुत कुछ बोलेगा, अब उसको एनीवे ठीक है। डिवोर्स वन फ्रॉम द अदर इज टू डिफीट द वेरी पर्पज ऑफ डेमोक्रेसी, यानी इनमें किसी एक को भी दूसरे से अलग करते हैं तो वो डेमोक्रेसी के पर्पस को ही डिफीट, यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही नहीं रहेगा। डेमोक्रेसी का मतलब ही है लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी, याद हो गया हमको। लिबर्टी कैन नॉट बी डिवोर्स्ड फ्रॉम इक्वालिटी,
इक्वालिटी इक्वालिटी कैन नॉट बी डिवोर्स फ्रॉम लिबर्टी। कोड न लिबर्टी को इक्वालिटी से अलग कर सकते हैं और न इक्वालिटी को लिबर्टी से अलग कर सकते हैं। कौन सा वर्ड था मैथ में? कोरोलरी। कोरोलरी। नॉर कैन लिबर्टी एंड इक्वालिटी बी डाइवोर्स फ्रॉम फ्रैटर्निटी। न इन दोनों को भाईचारे से अलग कर सकते हैं। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुप्रीमेसी ऑफ फ्यू ओवर मेनी। अगर बराबरी नहीं होगी तो आजादी का मतलब होगा कि कुछ लोग जो है वो बाकियों पर राज करेंगे। फ्यू ओवर, ठीक है ना, कुछ का सुप्रीमेसी होगा बाकी बहुतों पर, क्योंकि इक्वालिटी नहीं है। इक्वालिटी विदाउट लिबर्टी वुड किल इंडिविजुअल इनिशिएटिव। इक्वालिटी है लेकिन आजादी नहीं है सबको, तो उसे कोई कुछ करना नहीं चाहेगा। आजादी नहीं है तो करेगा क्यों? नहीं समझे? हम सब बराबर हैं लेकिन कोई बोल नहीं सकता है कुछ, तो बोल नहीं सकता तो वो कुछ कर ही नहीं पाएगा। तो बराबर आजाद है, बराबर है, तो उसका लेकिन मतलब आजादी नहीं है तो कुछ कर ही नहीं पाएगा। विदाउट फ्रेटर्निटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी कुड नॉट बिकम अ नेचुरल कोर्स ऑफ थिंग्स। और उसी तरह अगर भाईचारा नहीं होगा तो आजादी हो, बराबरी हो, लेकिन वहां क्या है कि आजाद भी हैं और बराबर, जो मना रहा है सब कर सकते हैं, और भाईचारा नहीं, तो फिर क्या करेंगे? लड़ाई झगड़ा। जिसको जो मना रहा है हमको क्या मतलब उससे, हमको ये मन है हम ये करेंगे। दूसरे को उससे तकलीफ हो रहा है। अब जैसे कि मेरा मन है हम घोड़ा दौड़ाएं खेत में, अगले का फसल खराब हो रहा है कि क्या हो रहा है उसका हमको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। हमको मन है, हमको आजादी है, हम घोड़ा दौड़ाएंगे। अरे भाई घोड़ा दौड़ाओ तो ये भी तो देखो कि अगले का खेत बर्बाद हो जाएगा। तो जब तक आप में अगले के लिए कंपैशन नहीं होगा तो आप ऐसे काम करेंगे जिससे उसको नुकसान हो, तो फिर वो समाज कहाँ रहेगा ठीक से? तो ये जो है बी आर अम्बेडकर जी ने कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली डिबेट्स में कहा है 25 नवंबर 1949। ठीक है। नाउ अब ये हमारे लिए सवाल है कि आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन योर क्लासरूम? क्या आपके क्लासरूम में लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी प्रैक्टिस किया जाता है? कहीं भी नहीं होता होगा। हाउ कैन दे कोएग्जिस्ट? नहीं हम करते थे नहीं, that was my principle and I assure you I was the monitor of the class always, and I may have told you that for 8 years that I stayed in the boarding school I was always unelected monitor। कभी इलेक्शन नहीं हुआ एक पहले साल के बाद, और कभी ये नहीं हुआ कि भाई कौन मॉनिटर होगा, तो यूनानिमस वाइज सबका होता था कि राकेश। एंड नो वन कुड टेल इवन टू दिस डे कि राकेश हैड एवर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट एनीवन। जहां तक मुझे याद है आई ऑलवेज ट्रीटेड एवरीवन इक्वली। ठीक है, मतलब अब सीनियर जूनियर तो वो अलग हो जाता है भाई, नेचुरल है। जो सीनियर जूनियर है कोई तो उसको तो अपने कलीग जैसा नहीं ट्रीट करेंगे, दैट वाज डिफरेंट, बट बिटवीन द कलीग्स I never discriminated, and that is why all the students they just loved me। मतलब बहुत सी चीजें जो मैं याद करता हूँ, जैसे मुझे प्राइज मिलता था, मैं जाता था अवार्ड लेने, इतनी तालियां सब पीटते थे बच्चे, खुश हो जाते थे, लगता था उन्हीं को अवार्ड मिल रहा है मेरी जगह। और एक के बाद एक मेरा नाम आता था, एक अवार्ड लेके आया नहीं कि तुरंत अगला फर्स्ट प्राइज, फिर जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड अनाउंस होता था, फर्स्ट के लिए गया प्राइज लेने आए, सेकंड थर्ड का नाम हुआ, तब तक लेके उधर से आ रहे हैं, किसी को अपना हैंड ओवर कर रहे हैं प्राइज, फिर अगला इवेंट में फर्स्ट प्राइज राकेश कुमार, फिर जा रहे हैं, तो सब ताली पीट पीट के बच्चा लोग लगता था हॉल गुंजा देता था। इतनी खुशी देखिए वो तभी होती जब उनको खुशी लगता हो कि हाँ भाई राकेश नहीं, हम ही जीत रहे हैं। आजकल ताली पीटने में लोग का हाथ दुखाने लगता है किसी के लिए ताली बजाने में। टू प्रेज अदर इज वेरी डिफिकल्ट, बट आई रिकॉल दैट दे यूज्ड टू क्लैप सो मच कि हर इवेंट आ रहा है राकेश कुमार फर्स्ट प्राइज, और मैं जा रहा हूँ दौड़ दौड़ के, मुझे यहाँ दौड़ना पड़ता था
गया लिया, दौड़ के आ रहा हूँ, दे रहा हूँ, फिर अब बच्चे ताली। अच्छा, ताली बजाने का मतलब क्या होता है? इट इज द प्रेज, द फीलिंग ऑफ गुडविल फॉर अदर्स विल। यस, वी सपोर्ट यू, वी आर वेरी हैप्पी दैट यू हैव डन दिस। इसको लिख ले क्या? यस, यू कैन राइट इट। ये भी पूछना, ये तो बहुत लड़का नहीं बता पाएगा। Clapping means you are happy, you are supporting the other, the winner. अच्छा जी, कि हम अपने घर के 8वां क्लास में जाने वाला है, उससे पूछेंगे व्हाट इज मीनिंग ऑफ क्लैप, इसका मतलब क्या, क्लैपिंग होता क्यों है, पूछते हैं उससे। क्लैपिंग, Clapping is feeling of joy at others achievement. बस, इसके अलावा फिर सपोर्ट भी होता है, इट इज अ मेंटल सपोर्ट, इट इज एन एम्पैथी, टू बिलीव इन दैट आइडियाज, टू बिलीव दैट इट इज लाइक कॉमरेडरी उसको कहते हैं, कि जैसा वो हमारी सोच है उसको भी लोग सपोर्ट करते हैं। मेंटल, इट इज अ मेंटल सपोर्ट। यस, डिफाइन मेंटल सपोर्ट ऑफ अदर अचीवमेंट या अदर, मतलब दे टुक प्राइड इन माय अचीवमेंट्स। एक बच्चा आया था, नया एडमिशन लिया था हम लोग के क्लास में बाद में, तो वो था कि अपने यहाँ जहाँ पहले पढ़ता था, मतलब हमेशा टॉपर में ही रहा वहाँ पे, तो वहाँ जहाँ पढ़ता था पहले स्कूल में, वहाँ वो टॉप किया करता था। वो आया, खूब मेहनत कर, सब कह रहे हैं, मुझे सब कह रहे हैं, राकेश अच्छे से इस बार पढ़ो, कहीं उसका नंबर ज़्यादा आ गया ना तुमसे तो देखो फिर तुम्हारा डाउन हो जाएगा। हम कह रहे हो जाएगा तो हो जाएगा, क्या हुआ भाई, वो काबिल होगा, ज़्यादा पढ़ेगा तो उसको नंबर आएगा, आ जाएगा, इसमें कौन सी चीज़, जो काबिल होगा उसको नंबर आएगा। नहीं नहीं नहीं, उसके फादर ऐसे ऐसे बोलते हैं, मेरा बेटा बहुत तेज है, वहाँ सुनाते हैं कि ऐसे है वैसे है, जाएगा तो वहाँ के टॉपर को फेल कर देगा, ये हुआ। हम कह रहे भाई कर देगा तो अच्छी बात है, वो काबिल होगा। तो खैर नहीं किया, उसका मार्क्स कम रह गया, तो सब बहुत खुश बच्चे कि वाह तुम फिर से अपना आदम मेंटेन रखा। मतलब आप नहीं, आप समझ सकते हैं, आप नहीं देखे होंगे वैसा, कि बच्चे कितना ज़्यादा मुझसे इन्वॉल्व और कितना मुझ में अपना मतलब वो प्राइड फील करते थे। दे यूज्ड टू फील सो मच प्राउड ऑफ मी, कि जैसे मुझे लगता था कि अरे ये मेरा नहीं उन्हीं का है क्या, कि जो है इतना खुश हो रहा है मेरे लिए, भले अपना फेल हो रहा है, अपना फेल भी हो रहा है, बट दे यूज्ड टू टेक प्राइड इन माई। एक बार ऐसे क्या हुआ, एक नए टीचर आए हम लोग को मैथ्स पढ़ाने, 9th क्लास की बात है, मतलब वो ए सेक्शन को पढ़ाते थे, हमारे टीचर उस समय किसी कारण से नहीं थे, तो या शायद वही आ, हाँ नहीं वही आए थे उस समय पढ़ाने, नए टीचर चेंज हुए थे। आए, बोलते हैं, आर.एन. पांडे सर नाम था उनका, कि सेठ की ए सेक्शन में बहुत अच्छे बच्चे हैं, एक से एक वहाँ मैथमेटिशियंस, आई लाइक देम वेरी मच। तो ऐसा बोल ही रहे थे, मैं बातूनी कम नहीं था, मैं पीछे चुप रहता नहीं था, तो मैंने कहा सर यहाँ भी है, इस सेक्शन में भी हैं, अभी आप कहाँ जानते हैं, अभी आप धीरे धीरे जान जाएंगे। तो मुझे ऐसे करके देखने लगे, फिर कहते हैं कि इस बार मैं ऐसा पेपर सेट करूंगा कोई बच्चा पास होके दिखा दे, इट इज माई ओपन चैलेंज। मैं ऐसा पेपर सेट करूंगा इस बार इस सेक्शन का कोई बच्चा पास होके तो दिखा दे। अब सब टेंशन में कि कैसा पेपर सेट करेंगे भाई, सब बहुत टेंशन में, तैयारी वारी जो भी है जैसे पढ़ रहा था कर रहा था, पेपर वॉज डिफिकल्ट, पेपर भी डिफिकल्ट था, तो पेपर डिफिकल्ट था। उसके बाद जब पेपर आया फिर चेक हुआ, वापस उसका मार्क्स अनाउंस कर रहे थे, सब बहुत बच्चे फेल थे, बहुत बच्चे फेल थे, मतलब लाइन से पहले कुछ नाम उन्होंने अनाउंस किया, सब फेल फेल फेल, जो नाम ले रहे हैं फेल, इतना फेल, इतना मार्क्स, सब बच्चे टेंशन में, क्लास में एकदम अजीब सा माहौल, कह रहे क्या हो गया, ये अलग है। इन्होंने फर्स्ट एग्जाम में सबको, फिर सब मेरा नाम आया, और सब लड़के सस्पेंस में कि राकेश का क्या होता है बोले खाली पहले नाम बोले राकेश कुमार, कुछ नहीं बोले, राकेश कुमार। मैं खड़ा हुआ, गया उनके पास, धीरे धीरे जाने लगा अपनी कॉपी लेने के लिए, सब बच्चे सस्पेंस में कि क्या बोले सर क्या बोले उनके पास पहुंचा मैं, तो मुझे ऐसे पर कुछ नहीं बोल रहे हैं, ऐसे देख रहे हैं, खाली ऐसे टेढ़ा नजर से बैठे हुए थे, हम करें कैसे देख रहे हैं, सब बच्चे सोच रहे हैं क्या हुआ राकेश का, जैसे देखे फिर कह रहे हैं 100 मार्क्स,
आप विश्वास नहीं कीजिएगा, बच्चों का ताली पीट पीट के गुंजा दिया कि वाह, राकेश अपना 100 का जो है रिकॉर्ड मैथ्स में रखा, कभी 100 से कम नहीं। कहे कि देखो, सब कहे कि सर फेल पे फेल आ रहा था, देखो अपना 100 का 100 मेंटेन रखा। इतना ताली पीटे सर भी हमको, कहे कि नहीं आज हम तुमको मानते हैं। बहुत ही मानते थे हमको, पहले पढ़ाते नहीं थे, हम लोग जानते नहीं थे। तो द स्टूडेंट्स दे यूज्ड टू टेक सो मच प्राइड इन मी। So that is because I also treated them with equal love. ये नहीं कभी मॉनिटर का ये दबाया दिखाया कि हाँ मैं मॉनिटर हूँ और ये हूँ, उसको वो कर रहा हूँ या किसी के खिलाफ गलत कर रहा हूँ। तो दे नेवर इलेक्टेड, मतलब इलेक्शन हुआ है कोई खड़ा ही नहीं हुआ कभी। और एक मतलब कुछ दिन के लिए हम फ्रस्ट्रेट हो गए लड़कों से, हम कहे हम नहीं बनेंगे मॉनिटर तुम लोग के, तुम लोग बहुत साल से हमको जो है जबरदस्ती मॉनिटर बना, हम दूसरे को बना देते हैं, नहीं यार तुम नहीं रहोगे, कैसे नहीं रहोगे, हम कहने हम नहीं रहेंगे। तो कुछ दिन के लिए मैंने किसी और को बना दिया था, कुछ दिन बेचारा झेला, बोला राकेश हमसे नहीं होगा यार, सब तुम ही खोजता है, तुम ही बन जाओ, हमको माफ़ करो। हम क्या, अच्छा है। तो दैट इज आई हैव एंड आई, मतलब सभी काफ़ी जूनियर से लेकर सीनियर तक भी, सीनियर भी हमको बहुत रिगार्ड करते थे। और टीचर्स का तो मैं क्या बोलूँ, टीचर्स तो बहुत, तो ऐसा नहीं है, इट है, ऐसा होता है हमारे यहाँ टीचर्स कम से कम जरूर करते थे, ऐसा नहीं है। टीचर्स दे यूज टू, दे डिड नॉट डिस्क्रिमिनेट। हाँ ये था कि चलो कुछ को मेरे प्रति कुछ विशेष फेवर जरूर था। ऐसा भी हुआ कि मेरी गलती के लिए वो मेरे दोस्तों को डांट देते थे, मेरी गलती के लिए वो मेरे दोस्तों को डांट देते थे कि तुम ही लोग बिगाड़े होगे तब ये ऐसा ही किया है। हाँ एक बार क्या हुआ, 6th क्लास में थे, तो फर्स्ट ईयर में बैठे हुए और मैं अपने दोस्त को कुछ तंग कर रहा था, रोहन रिटोलिया था धनबाद तरफ का। तो कुछ हम लोग आपस में खुसुर फुसुर कर रहे थे, बस सर उसको खड़ा करके डांट दिए। अब वो डांट दिए उसको, वो रोना शुरू कर दिया। अब हमको देखा नहीं गया, उसका आंसू रोने लग गया, हम तो खुराफात मजाक में कर रहे थे, वो रोने टप टप उसका आंसू गिरना शुरू, हमसे देखा नहीं गया। हम खड़ा होकर बोले सर आप इसको क्यों डांट दिए, क्या हुआ? हम बोले सर गलती मैं कर रहा था और डांट दिया, आप इसको जो है बेचारा रो रहा है। तो बोले बेचारे क्या कहें, इसको मैं बोल भी नहीं पाता हूँ, क्या करूँ, इसके कारण मैं दूसरों को डांट देता हूँ। चलो कोई बात नहीं बेटा, माफ़ करो, चलो भुला जाओ इस बात को, लेकिन चलो इसको तो मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो इसको मैं डांटूंगा नहीं, लेकिन चलो चुप हो जाओ। मतलब वो सबसे सीनियर टीचर थे हमारे, जो हम जिनको हम मिले, एंड ही वॉज टीचिंग फ्रॉम 50s, कैन नॉट बिलीव। मतलब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी आए थे उस समय का, बताए थे आपको शायद एक बार हमें कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद चीफ गेस्ट बन के आए थे। नहीं ये बात हमको नहीं पता, डॉक्टर वो हम लोग को बताते थे कि जब हम यंग आए थे और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए थे चीफ गेस्ट बन के फंक्शन में, शायद 52-53 की बात होगी, उस जमाने के टीचर, हाँ उस जमाने के सोचे वो अंग्रेज के जमाने के, और 40 साल बाद हमको पढ़ा रहे। अरे हमारे बहुत स्टाफ था अंग्रेज के समय का, अंग्रेजी बोलता था, ऐसा लड़कों को समझ नहीं आता था, किचन स्टाफ कर रहे, खाना जो बनाता था। तो वो बोले कि हम लोग लाइन में खड़े थे, प्रिंसिपल सर हम लोग को मिलवाने के लिए, भाई चूंकि चीफ गेस्ट आते हैं तो पहले सबसे मिलाया जाता है, तो हम लोग लाइन से खड़े थे। बोले कि आए प्रेसिडेंट साहब, राजेंद्र बाबू आए आगे, तो मैं सोच रहा था कि जैसे पहले से होता है कि भाई जैसे अगर हाथ बढ़ाएंगे तो हाथ हम भी शेक करेंगे, और नमस्कार वगैरह करेंगे तो नमस्कार वगैरह जो भी करेंगे, मतलब बोले इसी में उधेड़-बुन में था कि प्रिंसिपल सर ने कहा कि ये सर हैं, टीचर हैं मैथ्स के, जो भी सब्जेक्ट के, मैथ्स और संस्कृत भी पढ़ाते थे। तो बोले मैं इंतज़ार में था कि वो हाथ बढ़ाएंगे तो मैं हाथ उनका एक्सेप्ट करूँगा या नमस्कार करूँगा या क्या करूँगा। बोले तब तक उन्होंने झुक के मेरा पैर छू लिया। अब सोचिए प्रेसिडेंट आए हुए हैं, पूरा क्या माहौल है, फंक्शन एनुअल फंक्शन था, और वो बोले पैर झुक के छुए और मेरा आंसू टपाटप गिरना शुरू हो गया। हमको समझे में नहीं आया कि क्या हुआ, एक सेकंड के लिए लगा कि जैसे दिमाग बंद हो गया कि क्या हुआ। भाई प्रेसिडेंट, इतना स्टाफ सब है पीछे का, पूरा माहौल है स्कूल का, हम पहले नए टीचर थे तो आगे हम रो में थे, और प्रेसिडेंट झुक के मेरा पैर छू लिया। हम कहे कि सर ये आप क्या किए, आप हमसे उम्र में भी बड़े हैं और आप हमसे स्टेटस में भी बहुत बड़े हैं, उम्र में भी काफी बड़े होंगे, हाँ उस समय तो 40 साल हाँ बड़े तो होंगे। आप जो है मेरा पैर छू लिए। तो बोले कि नहीं, जब कहे कि ये टीचर हैं और इसमें हैं, तो हम आपको देखे, हमको अपने गुरु याद आ गए, और मैंने आपके रूप में अपने गुरु को प्रणाम किया, उनको याद करके आपका पैर छुआ।
और जब बताते थे बेचारे उनके आँख से आंसू दम टप टप गिरने लगता था। कई बार हम लोग को बताए थे घटना, क्या कि देखिए उस समय क्या लोग होते थे, क्या उनके विचार थे। आपके टीचर का कोई वैल्यू ही नहीं है कि वो हमको देखे कहे कि आप में हम अपना जब टीचर जाने तो हम अपने टीचर मेरे याद आ गए और मेरा अपने आप ही हम झुक के उनको वहाँ की पैर छू लें जब हम अपने टीचर को याद किए। तो यहाँ उम्र की बात नहीं है, आप में हम अपने टीचर को देखें और उनको हम याद करते, मेरा अपने आप हमसे हो गया कि हम पैर छू लिए झुक के। बोले कि देखिए उस समय क्या वैल्यूज था लोगों का और कैसे राजेंद्र बाबू थे, उनको बताते, बहुत मानते थे हमको। गुजर गए वो कोरोना के समय, सुने कि एक्सपायर कर गए। तो उस समय 90 प्लस काफ़ी एज हो गया होगा उनका। बहुत बहुत मानते थे, गजब वो लोग। तो ऐसे टीचर्स हमको ही मिले, ऐसी बात नहीं है, मैं कहूँगा बहुत मैं अपने आप को किस्मत वाला मानता हूँ कि ऐसे टीचर्स मिले हम लोग को। मतलब मैं मानता हूँ कि जीवन में मुझे टीचर्स और ऐसा स्कूल मिला, वहाँ पढ़ने का मौका, दैट वाज द गॉड्स गिफ्ट, दैट वाज हेवन फॉर मी। स्वर्ग मैंने कहीं देखा तो शायद अपना स्कूल ही देखा, जो भी टीचर्स थे वहाँ। तो देखिए कहा जा रहा है कि आर द प्रिंसिपल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रैटर्निटी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन योर क्लासरूम। तो आई हैव सीन इट, आई हैव सीन इट नॉट फॉर माई सेल्फ ऑल्सो, है अच्छा ठीक है, फॉर माई टीचर्स ऑल्सो, है ना। टीचर्स दे वर सच टीचर्स कि दे रिगार्डेड, हमको कभी ऐसा नहीं लगा कि हम में और अपने बेटों में उन्होंने कभी कोई फर्क किया। ये भी मैं बताऊं कि मैंने देखा है, ऐसा नहीं आप कह रहे हैं कि सर कहाँ होता है, लेकिन मैंने देखा है। हाँ बट अब जो हो ऐसा नहीं, मैं तो भाई मैं जो देखा वही कह सकता हूँ, बाकी मैं दूसरे पर नहीं कह सकता हूँ। बट व्हाट आई हैव सीन, नहीं मारते भी हैं तो देखिए मारने का वो बच्चों को, वो उनका कहीं ना कहीं एक गाइडेंस का ही होता है कि बच्चे सुधरे, या जो है तरीका अलग अलग होता है, ठीक है, बहुत लोगों का, ठीक है। बट आई हैव सीन दीज थिंग्स, ये नहीं कि मतलब वो करते थे, ठीक है, मेरे प्रति थोड़ा सा उनका विशेष प्रेम रहता था, मैं जरूर कहूँगा, लेकिन वो ऐसा कभी नहीं किए। और मतलब जो वीकेस्ट और जब से खुराफाती बच्चा रहता था उसको भी वो उतना ही उस पर उनके लिए उनका चिंता रहता था कि ये अच्छे से कर ले, ठीक है। ये नहीं कि हाँ नेग्लेक्ट कर रहे हैं, खाली अच्छे बच्चों को ध्यान दे रहे हैं, या जो पढ़ने तेज है या ओबीडियंट है उसको ही नहीं, सब पर ध्यान रहता था। तो आई विल से कि आई हैव सीन, और मैं इसलिए कहा ना आपको कि आई कंसिडर कि आई हैव सीन हेवन ऑन दिस अर्थ, देन दैट वाज माय स्कूल, दैट वाज रियली हेवन फॉर मी। हाँ आइए, हाउ कैन दे को एग्जिस्ट, ये कह रहा है कि हाउ कैन दीज को एग्जिस्ट, लिबर्टी, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, डिस्कस दिस विथ योर फ्रेंड्स, ठीक है, किसी से डिस्कस कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा। द प्रीवियस सेक्शन discusses the three factors that make a constitution effective and respectable। अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़ा जो कि ये इसको तय करते हैं कि कैसे कोई कॉन्स्टिट्यूशन सक्सेसफुल होता है, इफेक्टिव होता है और रेस्पेक्टेबल, यानी लोगों के द्वारा रेस्पेक्ट किया जाता है, ये 3 फैक्टर्स के द्वारा। हाउ फार डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पास दिस, तो हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसे इस टेस्ट को
पास करता है, कितना इस यानी कि इस टेस्ट पर, इस जांच पर कितना खरा उतरता है हमारा संविधान। ठीक है, composition of the constituent assembly. Our next topic is composition of constituent assembly. ठीक है, तो हमने ऑलरेडी कुछ पढ़ चुका है हम कि कैसे चुनाव हुआ, कितने मेंबर्स लिए गए। वही चीज वाला रिपीट कर दिया। नहीं, वही नहीं है। शुरुआत एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन, समझिएगा यहाँ बहुत ध्यान से, एज ए कॉन्सिक्वेंस ऑफ द पार्टीशन अंडर द प्लान ऑफ 3 जून 1947, 3 जून 1947 को पार्टीशन का जो प्लान तय किया गया कि कैसे हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग अलग होगा, उसका जो प्लान हुआ, हाँ 3 जून 1947 को, हाँ इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। तो नहीं रिकॉर्डिंग हो ना। हाँ हाँ, तो 3 जून 1947 को जो प्लान दिया गया पार्टीशन का, जिसके कारण दोज मेंबर्स who were elected from territories which fell under Pakistan ceased to be members of the Constituent Assembly. तो जो लोग ऐसे क्षेत्रों से मेंबर थे जो कि अब पाकिस्तान में जाने वाला था, तो ऐसे लोग जो है इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर, उनका मेंबरशिप खत्म हो गया। अब वो दे डिड नॉट एनी लॉन्ग बिकम बी they were no longer member of constituent assembly. The number of members in the assembly was reduced to 299. तो जब मुस्लिम लीग या पाकिस्तानी टेरिटरीज के जो मेंबर्स थे उनका मेंबरशिप चला गया, यानी वो ऐसे भी उनको आना था नहीं, तो द मेंबरशिप वाज फाइनली, द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स वाज 299। ठीक है, The Constitution was adopted on 26 November 1949. फाइनली हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हुआ कब, और अडॉप्ट किया गया, उसको अडॉप्ट किया गया मतलब अपनाया गया कि ये हमारा संविधान है जिसको हम अपना रहे हैं। फाइनल 26 नवंबर 1949 को, यहाँ ध्यान दीजिएगा अडॉप्टेड वर्ड। चाइल्ड एडॉप्शन भी तो होता है। तो हाँ, अडॉप्ट मतलब अपनाना, अपना बना लेना। हाँ, किसी दूसरे बच्चे को हम जब अपना बनाते हैं तो वैसे ही यहाँ है कि जो संविधान बन चुका था उसको हम अपना रहे थे कि ये हमारा संविधान। ठीक है, 26 नवंबर। हाँ, तो 26 नवंबर को इट वाज अडॉप्टेड। 284 members were actually present on 24th January 1950 and appended their signature to the constitution as finally passed. तो जब उस पर फाइनल सिग्नेचर हुए, अडॉप्ट कर लिया हमने कि हाँ ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के रेडी हो गया, अब उसको फाइनली सब साइन करना था, तो वो साइन हुआ कब, 24 जनवरी 1950 को, जिस सिटिंग में 284 मेंबर्स जो है एक्चुअली उस दिन प्रेजेंट थे और उन्होंने जो है कॉन्स्टिट्यूशन में अपना साइन किया। हाँ, अपेंडेड मीन्स वहां एडेड, अपेंड मीन्स होता है टू ऐड, अपेंड, APPEND। The Constitution came into force on 26th January 1950। और 24 जनवरी को जब सब मेंबर्स ने साइन कर दिया 284, तो वो फिर तय किया गया कि 26 जनवरी से ये प्रभाव में आ जाएगा। परसों से, 24 आज है तो परसों से ये प्रभाव में आ जाएगा, लागू हो जाएगा, इसके प्रोविजंस जो है वो इन इफेक्ट हो जाएंगे। तो 26 जनवरी was selected because of its historical importance of the Independence Day. Earlier 26 January was declared as Independence Day before independence. कराची सेशन वगैरह में 26 जनवरी को लिया गया था, तो उसी को हम इंडिपेंडेंस डे की तरह पहले सेलिब्रेट करते थे आज़ादी के पहले, तो इसीलिए उसी दिन को तय किया गया कि उस दिन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फोर्स में आएगा और उस दिन से हम एक रिपब्लिक के तौर पे, क्योंकि डिक्लेयर किया था रिपब्लिक, तो रिपब्लिक के तौर पे हम इसलिए उसको रिपब्लिक डे कहते हैं। तो पहले ही लोग सोच लिया था कि 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे। हाँ, ये तो मनाता था, सोचा नहीं था, हर साल उसको सेलिब्रेट किया जाता था एज ए इंडिपेंडेंस डे। 1930 के बाद से
30वें सेशन में तय किया गया था कि 26 जनवरी को हम लोग इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे, और इसलिए वो लोग एक जैसे इंडिपेंडेंट तो थे नहीं लेकिन मनाते थे, एक जनता को दिखाने के लिए, एहसास दिलाने के लिए कि अब नज़दीक आ गया है। तो 26 जनवरी को वो लोग इंडिपेंडेंस डे की तरह मनाते थे। तो उसी दिन को इसलिए तय हुआ कि 26 जनवरी से इसको लागू किया जाएगा। तो 24 जनवरी को सब मेंबर्स ने साइन किया, 24 मेंबर्स ने, और 26 जनवरी से ये प्रभाव में आ गया, इट केम इनटू फोर्स। द कॉन्स्टिट्यूशन वाज दस फ्रेम्ड अगेंस्ट द बैकड्रॉप ऑफ हॉरेंडस वायलेंस दैट द पार्टीशन अनलीस्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट। इस संविधान जो हमारा बनाया गया वो ऐसे माहौल में बनाया जा रहा था जब जो है पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ उसने बहुत ही घृणित, हॉरेंडस मीन्स फुल ऑफ हॉरर, हॉरेंडस वायलेंस, ऐसा मारकाट जो है मचाया, जो मतलब डरावना भयंकर मारकाट, फुल ऑफ हॉरर, क्रुएल्टी, हॉरिफिक। तो हॉरेंडस वायलेंस दैट द पार्टीशन अनलीस्ड ऑन द सब कॉन्टिनेंट। इस सब कॉन्टिनेंट में इतना, सब कॉन्टिनेंट इसलिए बोला क्योंकि इंडिया ही नहीं, उस समय जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सब, बलूचिस्तान सब एरिया था, उधर बांग्लादेश, ये सब, तो ऑन द सब कॉन्टिनेंट यूज किया कि सब कॉन्टिनेंट में इतना मार काट और हिंसा हुई, जो भयानक हिंसा हुई, क्योंकि पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था। ऐसे माहौल में बन रहा था हमारा संविधान। But it is a tribute to the fortitude of the framers that they were not only able to draft a constitution under immense pressure, but also learned the right lessons from the unimaginable violence that accompanied the partition. कहा जा रहा, पर यह हमारी श्रद्धांजलि है उन जो बनाने वाले थे संविधान के, फ्रेमर्स का जो फोर्टिट्यूड, उनका जो एक चरित्र था, ऐसा मतलब क्या बोले उसको, फोर्टिट्यूड मीन्स गुड क्वालिटी, गुड थिंकिंग, हाँ, गुड थिंकिंग, नोबल थिंकिंग, तो कहने का मतलब NOBLE होगा, NOBBE, तो बी ही होगा, हम LE बोले थे, नोबल, NOBLE, आप लिखे वो नोबेल लिख दिए, नोबेल प्राइज, नोबेल थॉट्स, ठीक है। तो कहा जा रहा है कि इतनी मार काट हिंसा चल रही थी, फिर भी जो इन बातों से प्रभावित हुए बिना, क्योंकि हो सकता है प्रभावित हो जाते कि अरे इतना मारकाट कर रहा है, सब कोई अधिकार मत दो, मुस्लिमों के खिलाफ हो जाए, ऐसे मतलब इस तरह का सोच हो सकता था। लेकिन उन्होंने इन चीजों से, जो इतना देश में मारकाट हिंसा चल रही थी, उसके बावजूद इन बातों से बिना प्रभावित हुए, अपने उच्च विचारों से उन्होंने इतने दबाव में के बावजूद एक संविधान बना पाए, बल्कि उन्होंने इन सब से एक सीख भी लिया। इस तरह का जो कल्पना नहीं किया जा सकता, ऐसी हिंसा हुई, वायलेंस हुआ, उससे उन्होंने सही सबक भी सीखा कि बंटवारे के कारण हमें क्या क्या झेलना पड़ा। द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन वॉज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप। एक सिटीजनशिप के नए कंसेप्ट को प्रति कमिटेड था कॉन्स्टिट्यूशन, की सिटीजन होंगे, अब जो भी लोग हैं वो सब सिटीजन हैं, और जो यहाँ का सिटीजन है उसको ये अधिकार है। ये सब नया कंसेप्ट था, उससे पहले था सिटीजन का कोई कंसेप्ट इंडिया में नहीं, कोई अधिकार थे, ब्रिटिश को जो मनाता था जैसे करते थे। अब जो था कि भाई अब जो भी लोग हैं वो सिटीजन हैं। सिटीजन जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में कंसेप्ट आया था कि उनको राइट्स हैं, आप उनके साथ किसी भी तरह का मनमाना व्यवहार नहीं कर सकते हैं, दे हैव बीन गारंटीड राइट्स। सो द कॉन्स्टिट्यूशन वाज कमिटेड टू अ न्यू कंसेप्शन ऑफ सिटीजनशिप वेयर
not only minorities would be secure, जहां न केवल माइनॉरिटी है वो भी सिक्योर, क्योंकि वो भी सिटीजन है, उनको भी बराबर अधिकार है जैसे किसी की भी बाकी की तरह, बट रिलीजियस आइडेंटिटी वुड हैव नो बियरिंग ऑन सिटीजनशिप राइट्स, यानी जो राइट्स हैं, नागरिक होने के अधिकार हैं, उस पर धर्म वगैरह का कोई प्रभाव नहीं होगा, कोई किस धर्म से है उसका उसके अधिकारों पर कोई प्रभाव नहीं। जो हिंदू है उसको भी समान अधिकार है संविधान में, जो मुसलमान है उसको भी समान अधिकार है, जो सिख है ईसाई है उसको भी समान अधिकार है। तो नागरिक के अधिकारों पर उसके धर्म का कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा इस संविधान हमने बनाया था। बट दिस अकाउंट ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दैट ड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन touches upon only the surface of how our constitution was made। क्या कि लेकिन ये जो हम वर्णन कर रहे हैं, जो डिस्क्रिप्शन कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का, कि इतने लोग ऐसे ऐसे चुने गए, इस माइनॉरिटी इस कम्युनिटी उस कम्युनिटी से प्रोपोर्शन में लिए गए वगैरह, जो भी हम बातें पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ ऊपरी तौर पर ये जा रहा है कि कैसे संविधान हमारा बता है, सिर्फ ऊपर हम उसको समझ रहे हैं। ओनली टचेस द सरफेस, मतलब हम सिर्फ ऊपर से देख रहे हैं कि क्या है। ऑल्दो द मेंबर्स ऑफ द असेंबली वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज, देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट टू मेक द असेंबली अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। हालांकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर्स का डायरेक्ट चुनाव नहीं हुआ था और यूनिवर्सल सफरेज से नहीं हुआ था, यानी कि सबको वोट का अधिकार हो, जहां पर ऐसे चुनाव में नहीं हुआ था, लेकिन देयर वाज अ सीरियस अटेम्प्ट, ये बहुत ही गंभीर कोशिश की गई थी कि इसको पूरी तौर पर एक रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, यानी सही मायनों में जो सभी लोगों के द्वारा उनको रिप्रेजेंट करती हो सही मायनों में, ऐसा मेंबर्स को चुनने की कोशिश की गई। हालांकि लोगों के डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं हुआ था इनका चुनाव, यूनिवर्सल सफरेज से नहीं हुआ था कि सबको वोट करने का अधिकार हो। यूनिवर्सल मतलब सबका, सफरेज मतलब राइट टू वोट। जैसे अभी है, कोई भी चुनाव होता है तो सबको कोई वोट करता है, ऐसा थोड़े वहां कहता है कि जो बीए पास है खाली वही वोट करेंगे, जो 10th पास है वही वोट करेंगे, जो इतना आमदनी है वो या इस धर्म के वही वोट, नहीं, सब कोई वोट करते हैं। यूनिवर्सल सफरेज, वोट का अधिकार क्या? हाँ, सफरेज मीन्स राइट टू वोट। राइट टू वोट, यस। सो ऑल्दो दे वर नॉट इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल सफरेज, but it was seriously tried to make it a fully representative body, जो पूरी तरह ऐसे एक असेंबली चुनने की कोशिश की गई थी जो पूरे देश के सभी लोगों का वास्तविक रूप से रिप्रेजेंटेशन करती थी। हालांकि डायरेक्ट इलेक्शन से उनका चुनाव नहीं हुआ था। मेंबर्स ऑफ ऑल रिलीजन्स वर गिवन रिप्रेजेंटेशन अंडर द स्कीम डिस्क्राइब्ड अबव। हर धर्म के लोगों को इसमें रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, जैसा ऊपर बताया गया। जैसे कि मुझे जो है बच्चे पहली बार जब 4th क्लास में हम लोग गए थे, तब से जो चुने थे रिप्रेजेंटेटिव क्लास का मॉनिटर और जो भी, और फिर मैं एग्जीक्यूटिव मीटिंग में भी जाता था उस क्लास को रिप्रेजेंट करने, तो मतलब दे बिलीव दैट आई वाज देयर ट्रू रिप्रेजेंटेटिव। और आप विश्वास नहीं कीजिए, एक बार मैं शायद 4th 5th क्लास में ही था और मुझे कहा गया कि शायद
क्लास की तरफ से था या हॉस्टल की तरफ से गया था। मुझे कहा गया कि यू टेल इन द एग्जीक्यूटिव मीटिंग दैट हमें फिल्म नहीं बढ़िया से दिखाई जा रही है स्कूल में। फिल्मों को कम कर, 1-2 फिल्म देखने का परमिशन होता था, उस पर भी एग्जाम के चक्कर में रोक लगा दी गई, या बच्चों का परफॉर्मेंस उतना नहीं ठीक था। तो मैंने खड़ा होकर बोला, आप विश्वास नहीं कीजिएगा, मतलब पूरा, मतलब एक तो प्रिंसिपल सर से इतना हम लोग को डर लगता था कि उनके सामने जबान नहीं खुलता था, इतना रिस्पेक्ट करते थे। और प्रिंसिपल सर और सारे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स सबका जो है, और उसमें मैं छोटा सा, शायद हार्डली 4th या 5th में रहा होगा, या कब छोटा सा था बिल्कुल, मैं वैसे भी हाइट वाइट। और मैंने खड़ा होकर बोला कि सर हम लोग को फिल्में नहीं दिखाई जाती है ठीक से। हाँ, एवरीवन स्टार्टेड ग्लेयरिंग एट मी कि कौन है बच्चा, भाई इसकी हिम्मत कैसे हो गई सर के सामने फिल्मों की बात करने की। फिल्म सर हंसने लग गए, बोले कि अच्छा देखेंगे इस बात को, अभी हम कुछ कह नहीं सकते हैं, बट वी विल लुक इनटू दिस। तो पहले तो मैं तैयार ही नहीं हो रहा था, बच्चे कह रहे थे तो कहोगे नहीं हमारे रिप्रेजेंटेटिव हो तो हमारा मांग रखोगे नहीं वहां पर। हम बोले अरे कैसे फिल्म की बात करूंगा प्रिंसिपल सर के सामने। बोले नहीं, अब तुम मेंबर हो तो कहना पड़ेगा, तुम कैसे नहीं कहोगे। तो मैं कहा कि मैं कोशिश करूंगा भाई, मैं गारंटी नहीं कर सकता हूँ मैं से वहाँ कह ही पाऊंगा ऐसा ही बात। बट मैंने देखा कि भाई नहीं कहूंगा तो फिर कहें कि कहे नहीं, मैंने कहा कहना ही पड़ेगा, तो क्या करें। खड़े होकर मैं बोला, सब मुझे घूरने लग गए कि कौन है, छोटा सा बच्चा है। तो सब इसलिए मुझे बहुत ही करते थे कि देखो है लेकिन बोलता है। तो कहने का मतलब यहाँ मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि मतलब रिप्रेजेंटेशन, कोशिश किया गया था कि वो सही मायनों में रिप्रेजेंट करे, सबकी बात को उठाने वाले, जैसा आपने डिबेट्स में देखा भी है, जब आपने संविधान के एपिसोड्स देखा है कि किस तरह से लोगों ने सभी सेक्शन से जो भी रिप्रेजेंटेटिव थे उन्होंने अपनी अपनी बात को रखा। दूसरे को वो बात बुरी लग सकती है, कड़वी लग सकती है, लेकिन भाई जो बात है कहना है सो कहना है, हमारे भाई लोगों का ये सोचना है तो है। In addition, the assembly had 28 members from the scheduled castes. ठीक है, इनके अलावा जो है शेड्यूल्ड कास्ट से 28 मेंबर्स को चुना गया था। इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, द कांग्रेस डोमिनेटेड द असेंबली, ऑक्यूपाइंग एज मेनी एज 82% ऑफ द सीट्स इन द असेंबली आफ्टर पार्टीशन। नेचुरल है कि कांग्रेस जो उस समय की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी, तो जब वो डिवाइडेड इंडिया हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, तो डिवाइडेड इंडिया के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में उसके 82% सीट्स था, तो नेचुरली उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी थी कांग्रेस की। द कांग्रेस इटसेल्फ वाज सच अ डाइवर्स पार्टी दैट इट मैनेज्ड टू एकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट। और कहा जाए कांग्रेस अपने आप में इतनी डाइवर्स पार्टी थी, इतने अलग अलग विचार के, इतने अलग अलग समाज से हर तरह के लोग थे कांग्रेस पार्टी में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी बहुत ही जो एक सेक्युलर ओपन इस तरह की थी, सब कोई उसके मेंबर थे, हर जाति से, हर धर्म से, हर वर्ग से, आपने पता है कि गांधी ने सबको जोड़ दिया था इससे। तो इतने डाइवर्स लोग थे इसके मेंबर्स दैट इट मैनेज्ड टू एकोमोडेट ऑलमोस्ट ऑल शेड्स ऑफ ओपिनियन विद इन इट, कि हर तरह के ओपिनियन को ये अपने में समेटे हुए थे, हर तरह के लोगों का विचार इसके अंदर। शेड्स मतलब अलग प्रकार के, हाँ, टाइप्स। जैसे शेड होते हैं कलर के अलग अलग, वैसे यहाँ ओपिनियन के शेड की बात का है। कलर का शेड होता है ना अलग अलग, वैसे ही कहा कि शेड्स ऑफ ओपिनियन, डिफरेंट बस डिफरेंट ही होगा ना, हाँ, डिफरेंट टाइप्स या जो भी। तो हर तरह के विचारधारा को कांग्रेस अपने में रख, यानी हर विचारधारा वाले लोग थे कांग्रेस में ही, सब अलग अलग विचार। हाँ, कांग्रेस में ही सोशलिस्ट भी थे, कांग्रेस में ही हर तरह के भी कम्युनिस्ट टाइप सोच वाले भी थे, कांग्रेस में नेशनलिस्ट थे, मॉडरेट्स भी थे, एक्सट्रीमिस्ट भी थे, सब तरह के लोग, हाँ, हर भाषा बोलने वाले थे, हर जगह से लोग थे, हर धर्म के थे, हर जाति के थे, हाँ। तो यहां हमने देख लिया कि हाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज मेड, हाउ वाज इट कंपोज्ड, कंपोजिशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमने देख लिया। ठीक।
तो ये टॉपिक यहाँ तक हो गया। अब नेक्स्ट हम जो है प्रिंसिपल ऑफ डेलिब्रेशन समझेंगे, कैसे बहस हुई, कैसे लोग तय करते थे, बात विचार करते थे इसको। हाँ, डेलिब्रेशन मीन्स डिस्कशन, नहीं, डेलिब्रेशन मीन्स डिस्कशन। डिलिबरेटली होता है, हाँ जानबूझ के, by हाँ, knowingly, थॉटफुली, knowingly. यस, नोइंगली। तो ओके, वी विल कीप इट अप टू हियर।